viewers, today I am going to tell you about the SQL in Access. First of all, I would like to create the table in design view or in query view, SQL view. So for that you have to select the table first and then go to the SQL view. Here you have to write create table emp employee number not null primary key comma employee fname text not null, then next name text not null, then salary number not null, then dep no department department number, that is number comma bracket close semicolon. So this is your create command through which you can create your table employee emp. Just run it, you get the table. So as I told you, each and every step you write same way, otherwise if you forgot comma or semicolon then it won't create your table. Now save this table query. Yes, create emp create. Now you get the query employee create and employee. Now you have to insert the value in employee. This is a table which I create in design view. You can see it in the design view. Here I have created employee number, fname, name, salary, employee department number, and the primary key is ENO. Same way I have created it with the SQL query. Now you have to insert the value. Now you have to insert the value in a employee table. For that you create a query design view and take emp add close, then create a query in SQL view. Here you have to write insert value, insert into emp values. What is a value? First employee, suppose it is Amit, and the name is HERWL, and salary is 12,000, and the department is computer or first department. Now you run this. Syntax error, missing operator in query 1, Amit. Okay, just find it what is left. यहाँ पे एक कोट्स ज़्यादा आ गया है, तो अब ये रन करेगा. Now it is appended the value in employee. Let's see. Now add the value directly here to department 1, then
Here you can increase the size of database. So select it. First of all, type here Rohit Singh. Select it and increase this, so it will become visible to all of you. That's why I'm increasing it. And then create the department. For that you have to write again the query. For that you select the any table and then create SQL, close, view, SQL. Here you have to create table, department, DNO, number, not null, primary key, then department name, text, not null, and close. Clear? Now run it. You will get the department and save this query. Yes, department create. Okay. So there are two queries, one for employee, one for department, and you have made the department employee value. Now create the department. You have taken two departments. So open the department table. Here you have to write one is computer and second is SCIENCE, science. Again you increase the font so you can see what I am writing. Okay, the first is computer and second is science. Now enter the salary more in employee. Here you have to write 4 more. Suppose he is getting 5,000 and department is 1 and then again 5. Rekha Yadav getting 7,000. 2, then Neetu Singh then getting 4,000 and department is 2. Clear? So this way I have entered the value. Now you have to do the different command. I already told you create and insert. Now suppose you want to delete any value, then how you will delete? Just see. Insert, employee, insert. Clear? Now you have to delete any value. So create, query design, एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय जाना है, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, क्यूरी में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर
ENO is equal to 6 या ENO equals to 6। इसमें देखिए ये था ना 6 तक हमने किया था 6, तो 6th वाला डिलीट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा 6। नाउ रन दिस। You are about to delete one row from the specified table. Yes. Now see the employee table. You won't get the Neetu. Again, design view. Insert में अमित था, यहाँ पे अगर आप कुछ और डाल दीजिएगा तो इसको सेव करना तो सेव कर लीजिए, लेकिन डिलीट क्यूरी ना सेव कीजिए तो ही अच्छा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए हम कर देते हैं एम्प्लॉय डिलीट। ओके, डिलीट भी कई तरीका से हो सकता है कि हर फील्ड पे डिलीट हो सकता है। मान लीजिए आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एफ नेम इक्वल्स टू नीतू, तो वो तो भी उसी को करता। अभी हम एम्प्लॉय में और वैल्यू डाल दें 6। अच्छा, वैल्यू डालने के लिए हमने कल बताया था क्रिएट फॉर्म कर दीजिएगा, तो वैल्यू फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप जब न्यू करिएगा तो नई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखिएगा 6। इसको सेव करना पड़ेगा पहले। यस, सेव चेंजेस इन डिजाइन एम्प्लॉय FRM फॉर्म। ओके, नाउ क्लोज इट और फॉर्म को रन करिए। अब आप एंट्री करिएगा तो फॉर्म पे रन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 नीतू, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंह, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसको भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे आए। अब हमने कहा कि नाउ फाइंड आउट द शो द ऑल एम्प्लॉयज इन अ table employee. So write the query for that. Again you have to come in SQL view. Here you have to write select star. There are two types of wildcard, star and question mark. When you write the star, that means all field you want. Select star from employee. As you write this, the whole value will come on the screen. This is the value. So save changes, yes, query में employee select all. Okay, now same value you want to design, go to design view. When you say select employee F name, select star from employee where employee F name equals to Amit. When you say this one, then run it, then it will show only the Amit. So it will select the value according to EF name. Now you want to find out, the maximum salary, minimum salary and average salary of the employee. So select star from employee, select
क्या क्या, मिनिमम ई सेल, मैक्सिमम ई सेल और एवरेज ई सेल। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एम्प्लॉय, and run it. It will give a minimum, maximum and average salary of the employee. Let's see. अब इसमें क्या होगा कि यह डिजाइन व्यू, एसक्यूएल व्यू, मिनिमम ई सेल, मैक्सिमम एज, अब यहाँ एक्सप्रेशन 1 आ रहा है ना, यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम और एज एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉय की सैलरी निकल आएगी। देखिए, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। अब इस क्यूरी को हम सेव कर देंगे। वांट टू सेव, want to save the query, so save it. Want to save, yes, तो इसी में सेव हो गई ना, इसलिए हमको हर बार जब क्यूरी बनाना होगा तो सेपरेट लेना पड़ेगा। अब क्या किया हमने, कहा कि केवल कुछ फील्ड दिखाओ और डिपार्टमेंट नंबर पे सॉर्ट कर दो। तो क्रिएट करेंगे, क्यूरी करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, ऐड करेंगे, टैब क्लोज करेंगे, व्यू में जा करके एसक्यूएल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ई एफ नेम, ई डेप्थ। देखिए क्या फील्ड थी एम्प्लॉय में, ई डी एन ओ थी, है ना, और सैलरी ई सेल है ना, तो ई डी एन ओ और कॉमा ई सेल, है ना। अब हम दिखाते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो लिखेंगे ऑर्डर बाय ई डी एन ओ कॉमा सेल। पहले इसी पे करते हैं, डिपार्टमेंट पे इसको रन करते हैं। तो रन किया, सिंटैक्स एरर, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय के बीच में जगह नहीं है, ऑर्डर बाय ईडीएमओ। तो ये देखिए, पहला डिपार्टमेंट एक जगह हो जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट एक जगह हो जाएगा। तो ये क्या किया उसने, सॉर्ट कर दिया किस पे, डिपार्टमेंट नंबर पे। ठीक है, तो वांट टू सेव, यस, एम्प्लॉय सॉर्ट, डन, डिपार्टमेंट नंबर पे सॉर्ट कर दिया। अब हम डिपार्टमेंट पे सॉर्ट करेंगे और सैलरी पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम क्यूरी को लिखेंगे और लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई एफ नेम कॉमा ई एफ नेम कॉमा ई डी एन ओ डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सैलरी। जिस जिस चीज को आपको करना है उसको क्या करना पड़ेगा,
दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब लिया फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या करना है, ऑर्डर बाय EDNO कॉमा ई सेल। अब ई सेल को क्या करना है, डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग। ठीक, अब इसको रन किया, तो सैलरी नहीं दिखा रहा है, तो फिर से करते हैं, कुछ गड़बड़ होगा। क्रिएट क्यूरी एम्प्लॉय ऐड क्लोज व्यू, ओके व्यू SQL व्यू, select e name, EF name, comma e department number, comma e cell from employee, order by EDNO, comma e cell descending, यही तो लिखा था। चलिए करके देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो पहले डिपार्टमेंट 24,000 सबसे ज्यादा और दूसरे डिपार्टमेंट में 15,000 सबसे ज्यादा। तो इस क्यूरी को अब सेव कर लें, तो मतलब डिपार्टमेंट पे असेंडिंग होगा और सैलरी पे डिसेंडिंग होगा। तो एम्प्लॉय डेप्थ सेल डेस्क, है ना, इसको सैलरी को इसने डिसेंडिंग कर लिया। तो ऑर्डर वाइज से क्या होगा, हमारा आ जाएगा सॉर्टेड इंफॉर्मेशन। अब डिपार्टमेंट की मैक्सिमम मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज कैसे आएगी, है ना। तो यहाँ फिर से क्रिएट करते हैं क्यूरी डिजाइन एम्प्लॉय SQL view, select minimum e cell as min, comma maximum e cell as max, comma average e cell as average। From employee where e depth NO equals to 2। अब मान लो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हमें करना है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है। एवरेज पॉइंट में आ रहा होगा, इसलिए वो नहीं एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट कौन से होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज बता देते हैं। पहले ऑर्डर बाय, फिर ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके, मान लीजिए मैं काउंट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ गए
एम्प्लॉय लिया, ऐड किया, क्लोज किया, न्यू एसक्यूएल, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट EDNO कॉमा काउंट EF नेम, है ना, काउंट किया फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक, फ्रॉम एम्प्लॉय, इसीलिए एरर ले रहा था क्योंकि एम्प्लॉय हमने लिख दिया था। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट पे, EDNO, है ना, क्या होगा, नहीं ग्रुप बाय करना है ना, ग्रुप बाय EDNO, ठीक तो है ना, ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट। अब इसको रन करो तो ये देखो दोनों में 3-3 है, तो वो दिखा दे रहा है कि 3-3 एम्प्लॉइज हैं, है ना, यस, EMP ग्रुप, ओके ठीक। तो एम्प्लॉय का ग्रुप भी हो गया। अब ग्रुप के बाद आया हैविंग, द क्लॉज यूज फॉर क्रिएटिंग कंडीशन ऑन ग्रुप इंफॉर्मेशन। जब ग्रुप इंफॉर्मेशन होगी तभी हैविंग लगेगा। और ग्रुप कब होगा, फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। एक ग्रुप में कितने लोग काम करते फाइंड करना होगा, तो ग्रुप बाय लगेगा। अब ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगाते हैं। हैविंग क्लॉज यूज फॉर क्रिएटिंग कंडीशन ऑन अ ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन। इसको कैसे करते हैं, क्रिएट, क्यूरी डिजाइन, एम्प्लॉय, ऐड, क्लोज, व्यू, एसक्यूएल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर EDNO कॉमा मैक्सिमम ESAL, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर क्या किया, ग्रुप बाय EDNO, है ना। अब आया हैविंग क्लॉज, हैविंग मैक्सिमम ESAL ग्रेटर देन 10,000, है ना। अगर 10,000 से ज्यादा है तो वो उसकी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी दिखा दे। तो इसको रन किया तो ये आ जाएगा 24,000, और 15,000 ज्यादा है तो ये आ जाएगा, है ना। हम इस क्यूरी को सेव करेंगे, EMP हैविंग, ठीक। तो इस तरह से आपकी क्यूरी बनती जाएगी और आप इसको कर पाएंगे। अब हम इंसर्ट कमांड सिंपल तो बता दिए हैं, लेकिन एंड अगर वेरिएबल नहीं पता है तब भी आप, नंबर ऑफ वेरिएबल होगा तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। वो मोर एडवांस फीचर है, छोड़ देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब आया सेलेक्ट कमांड में कि डिस्टिंक्टिव डिपार्टमेंट नंबर, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉय में गए, ऐड किया, क्लोज किया, न्यू एसक्यूएल। हमने कहा था ना सेलेक्ट बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। डिस्टिंक्ट EDNO फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से, ठीक। तो रन किया तो पहला डिपार्टमेंट और 2 ही डिपार्टमेंट था, तो दोनों डिपार्टमेंट उसने दिखा दिया। तो डिस्टिंक्ट कैसे लिखते हैं, इसको सेव कर लीजिए, EMP डिस्टिंक्ट, ओके।
इसको फिर से देखना है तो राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू करिएगा तो ये दिखा देगा आपको। ठीक है, अब आया सैलरी हमारी अगर 1000 और 20,000 के बीच में है तो उसको वो लिस्ट कर दे, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, फिर से करिए क्रिएट क्यूरी डिजाइन एम्प्लॉय ऐड क्लोज, है ना, व्यू एसक्यूएल, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार कर देते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सेल बिटवीन, इसको लिखेंगे बिटवीन। अब कहाँ से कहाँ तक लिखें, 4000 से 24,000 तक। ठीक, अब इसको रन करिए तो ऑलमोस्ट ये सारा ही कर दिया। मान लीजिए हम कुछ चेंज करते हैं इसको। ठीक, तो हमने लिखा ये क्यूरी पे गए, हमने लिखा, इसको सेव कर दें पहले, यस EMP बिटवीन। ठीक, अब बिटवीन में गए, डिजाइन व्यू में गए, यहाँ पे हमने चेंज किया। यहाँ पे मान लीजिए कहते हैं 10,000 से लेकर के 20,000 तक। ठीक, अब इसको रन करिए तो आपका कुछ लिमिटेड वैल्यू ही आएगी। ये केवल 2 लोगों की इंफॉर्मेशन आई जो 10,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे थे। ठीक है, अब आया डिस्टिंग के बाद। डिस्टिंग तब जरूरत पड़ती होगी कि हर डिपार्टमेंट में किसकी सबसे ज्यादा सैलरी है भी निकाल सकते थे आप, है ना। अब हमारा पोस्ट अगर होता तो उस पर हम क्यूरी बना सकते थे। अब एक आया कि वाइल्ड कार्ड यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं। तो वाइल्ड कार्ड यूज करके, वाइल्ड कार्ड हमने 2 बताए, स्टार और क्वेश्चन मार्क। नाउ क्रिएट क्यूरी ऐड क्लोज व्यू ओके एसक्यूएल व्यू, है ना। यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करना था ना, एम्प्लॉय, है ना, वेयर EF name like A स्टार, है ना। रन करिए तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने नाम है वो आ जाएंगे। ए वाइल्ड कार्ड, अब सेम इसको क्या करना है हमको, डिजाइन व्यू में खोला, यहाँ पे हमने कहा कि पहला अक्षर कुछ भी हो, है ना, पहला अक्षर कुछ भी हो, दूसरा ए हो या ई हो, है ना, बाद में कुछ भी हो तो वो रन कर जाए। तो क्या लेगा, रेखा और नीतू। देखिए दूसरा तो
ई है और पहला कुछ भी हो सकता हो, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड काम करता है। ठीक, अब क्या करें, नल ऑपरेटर चेक करना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो अगर किसी चीज में वैल्यू नहीं है तो नल चेक होगा। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय में जाएं, यहाँ पे एक किसी का वैल्यू हटा दें, ये नल हो गई, है ना। अब हमने चेक किया, क्रिएट किया, क्यूरी डिजाइन किया, ऐड किया, क्लोज किया, न्यू, सेलेक्ट क्यूरी करा, यहाँ पे सेलेक्ट EF नेम, सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं ना, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EL नेम इक्वल्स टू नल, है ना। तो रन करिए, कोई भी नहीं आया, नो। एम्प्लॉय में अभी तो किया था, अच्छा सेव नहीं किया इसको, है ना। फाइल सेव तो हो गई। अब फिर से बनाते हैं, क्रिएट, क्यूरी डिजाइन, ऐड, क्लोज, डिपार्टमेंट ले लेते हैं, क्रिएट, क्यूरी डिजाइन, ऐड एम्प्लॉय, ऐड, क्लोज, व्यू, स्क्वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EFL name इक्वल्स टू, वो स्पेस ले रहा था, नल नहीं ले रहा था, इसलिए ले लेते। तो जिसमें खाली था उसमें दे दिया। अब यहाँ पे आप भर सकते हैं, सपोज भरते समय आप भूल गए और फिर करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से नल हम चेक कर सकते हैं। अब क्या है, ऐसे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नल, ऐसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसकी यहाँ पर एक फील्ड और ऐड कर ले, जिसका डिपार्टमेंट 1 हो और सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो या 7,000 से ज़्यादा हो, 10,000 से ज़्यादा हो। चलो, तो क्रिएट, क्यूरी डिज़ाइन, अब 2 कंडीशन होगी तब कैसे होगा, है ना। यहाँ पे आए, व्यू किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EDNO इक्वल्स टू 2 एंड और 2 कंडीशन होती है, तो एंड होगी तो दोनों ट्रू होनी पड़ेगी। व्हेन द ई सेल इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक, अब रन करके देखिए तो ये आ जाएगा, रोहित की है 10,000 से ज़्यादा और डिपार्टमेंट 2 है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी क्यूरी बन सकती है। आज हमने कहा था हम सेलेक्ट क्यूरी पढ़ाएंगे, तो हमने सेलेक्ट क्यूरी आप लोग को पढ़ा दी है और इसको प्रैक्टिस करिए। तो 3 तरह की क्यूरीज हैं आपकी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कल हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ाई थी जिसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और पढ़ाया था, और साथ ही में कुछ डेटा मैनिपुलेशन की कमांड पढ़ाए थे जिसमें से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट पढ़ाया था। आज हमने सेलेक्ट पढ़ा दिया डेटा मैनिपुलेशन में। डिफरेंस ये है कि सेलेक्ट कमांड में इंफॉर्मेशन आपके पास दिखती है और डिलीट, अपडेट और
इंसर्ट में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जाती है, सेलेक्ट में आप इंफॉर्मेशन डेटाबेस से लेते हैं, केवल यही मेन डिफरेंस है. So today I am closing. It is quite enough. Thank you viewers. Please subscribe my